Hello friends, so let's discuss about the amenorrhea. Okay, dysmenorrhea, amenorrhea, polymenorrhea, oligomenorrhea. These are the menstrual problems which are seen commonly in young females. Okay, amenorrhea, you can see here the loss of menstrual bleeding, that is called as a amenorrhea. Okay, so let's see the primary and secondary amenorrhea and their causes as well. So amenorrhea is happening nowadays very frequently. You can observe this. Okay, so amenorrhea, that means no bleeding. No bleeding, you can see here. This is the normal genital tracts of our females. This is cervix. This is the this one is the neck of the our uterus, that is cervix. Okay, this one is a uterus. Then ovaries, fallopian tubes. Okay, then this one is vagina. Okay, vagina is covered with our membrane that is called as a hymen. You all know very well. Okay, because we have already discussed the female genital tracts in detail. Okay, anatomy of female genital tract already detail में हमने cover किया है. So no bleeding, that means amenorrhea. Now again you can see here, amenorrhea means A means absent and menorrhea means menstrual bleeding. Absent of menstrual bleeding, that is called as a amenorrhea. Now absence of menses, again that is called as a amenorrhea. So further अगर डिटेल में डिस्कस करें तो you can see here primary amenorrhea and secondary amenorrhea. There are two type of amenorrhea. Okay, loss of menstrual bleeding, or you can say absence of menstrual bleeding, that is called amenorrhea. But there are two type of you can say the amenorrhea, primary and secondary. Primary कब बोलेंगे? Absence of menses by age of 14 with absence of growth and development of secondary sexual characters, that is called as a primary amenorrhea. Okay, there are two things you should know. There are two things we are defining the primary amenorrhea. Primary amenorrhea कब बोलेंगे? जब एज ऑफ 14 फीमेल की हो गई है बट देर इज नो starting of the menses and there is no secondary sexual character. Now here you can see here again there is a another way of defining the primary amenorrhea. The absence of menses by age of 16 with presence of secondary sexual characters. Okay, menses नहीं आ रहा है, up to age of 16 हो गई है फीमेल्स की, बट जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो है. तो देर आर टू वे ऑफ डिफाइनिंग द प्राइमरी एमेनोरिया. absence of menses by age of 14 with absence of growth and development of secondary sexual characters, and second one is absence of menses by age of 16 with normal growth and development of secondary sexual characters. Now you will say, what are the secondary sexual characters seen in the females? The development of the breasts, okay, the pubic hairs and the high pitch voice. These are the, you can say, there are number of again signs you may see the females as a secondary sexual characters. तो you can see here secondary sexual characters अगर normally present रहता है तो मेंसेस नहीं आ रहा है, उसका क्या क्या कारण हो सकता है? तो इम्परफोरेटेड हाइमेन हाइमेन रप्चर ही नहीं हुआ है एंड दैट्स वाई ब्लीडिंग जो है वो अंदर कलेक्टेड होती है, दैट इज कॉल्ड एज इम्परफोरेटेड हाइमेन. ओके, ट्रांसवजाइनल सेप्टम, there is a septum between the kind of uterus and vagina, that is again inhibits the flow of menses. Okay, absent vagina with functional uterus. वजाना ही अगर यू कैन से अगर absent है या फिर absent vagina with non functional uterus. तो above features are suggestive of uterine and genital tracts problems that lead to the cryptomenorrhea. Okay, imperforated hymen leads to the cryptomenorrhea. Crypto means hidden, menorrhea means bleeding, hidden bleeding. Okay, bleeding is there but due to the septum, due to the imperforated or due to the not rupture of the hymen, there is no menstrual bleeding seen via the pervaginum. Okay, now again you can see here, if the secondary sexual character is absent, what the probable cause of that? तो delay in hypothalamus maturity. ओके, एक्सट्रीम वेट गेन हो गया है. ओके, हाइपोथैलेमस अगर मैच्योरिटी नहीं हुई है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेफिनेटली अगर प्रोड्यूस नहीं हुआ है, इसका क्या क्या कॉज हो सकता है यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं. अगर absent है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर काइंड ऑफ फॉर्म करने के लिए या फिर काइंड ऑफ बॉडी में मैनिपुलेट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? दैट इज ओनली एस्ट्रोजन हार्मोन. एस्ट्रोजन सीक्रेट बाय आवर काइंड ऑफ ओवरी. तो ओवरी कैसे सीक्रेट करेगा एस्ट्रोजन हार्मोन? दैट इज ड्यू टू द FSH एंड LH. तो जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा, देयर इज नथिंग बट आवर एक्टिवेशन ऑफ आवर ओव्यूलेशन साइकिल एंड दैट्स व्हाई ओव्यूलेशन लीड्स टू अ काइंड ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोडक्शन. ओके, तो एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोडक्शन कब होगा? व्हेन देयर इज FSH एंड LH. देयर इज अगेन आई एम एक्सप्लेन टू यू कि मेंस्ट्रुअल साइकिल अगेन हमने डिटेल में डिस्कस किया है. ओके, हिंदी इंग्लिश सब मिक्स करके मैंने डिटेल में काइंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है फीमेल्स का डिटेल में डिस्कस किया है. देयर विल नॉट हैव एनी डाउट इफ यू काइंड ऑफ सीन दैट वीडियो. ओके, इफ यू able to see the video, definitely you watch that and you will not have any doubt regarding the menstrual cycle.
सो डिले इन हाइपोथैलेमस मैच्योरिटी है फीमेल्स के, डेफिनेटली FSH एंड LH नहीं होगा, एंड FSH एंड LH नहीं होगा, तो डेफिनेटली देर इज नो मेंसेस, देर इज नो अ काइंड ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. एक्सट्रीम वेट गेन हो गया है पेशेंट का, अगेन इट इनहिबिट्स द हार्मोन प्रोडक्शन. ओके, एनोरेक्सिया है, अगेन द एनोरेक्सिया नर्वोसा, इट इज अ प्रॉब्लम that is due to the excessive thinking. तो excessive thinkings leads to again the inhibit the production of hormones. obesity है, resistant ovary syndrome, ovarian dysgenesis, ovary ही फॉर्म नहीं हुआ है, this is a congenital problems, ovary ही फॉर्म नहीं हुआ है, ovary फॉर्म नहीं हुआ है तो there is no way to form of estrogen hormone, and if suppose estrogen is not there, there is no secondary sexual characters. Okay, then shock, stress, fear, brain tumors, infections, again these are the probable cause of our absence of secondary sexual characters. Above suggestive pathology due to the HPO axis problems, hypothalamus pituitary ovarian axis problem. Okay, hypothalamus pituitary ovarian axis problem leads to secondary sexual characters absent. Okay, leads to absence of secondary sexual characters. Now देखो अलग से यहाँ पे अगेन क्राइटेरिया दिया है, अगर absent है चेक द हाइट, इफ इट इज नॉर्मल लुक FSH एंड LH, हाइट चेक करना है, अगर नॉर्मल है FSH एंड LH आपको चेक करना है. नाउ इफ इट लो मीन्स हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म, अगर FSH एंड LH अगर नहीं है दैट इज कॉल्ड एज अ हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म. ओके, हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हमने क्या देखा यहाँ पे, तो यू कैन सी हियर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अगर एब्सेंट है तो आपको क्या देखना है, हाइट देखना है पेशेंट का, लेडी का क्या देखना है, हाइट देखना है. अगर वो नॉर्मल है उसका FSH LH देखना है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, अभी हार्मोन लेवल चेक करना है आपको, ये लैब टेस्ट है आपको पेशेंट का, डेफिनेटली ब्लड वगैरह के थ्रू ये FSH एंड LH बॉडी में कितना है काइंड ऑफ रूल आउट हो जाएगा वो इजीली. अगर वो नॉर्मल है तो अगर वो नॉर्मल यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको फर्दर बताऊँगा. अगर वो लो है, ओके, अगर वो लो है तो देख सकते हो इसको, दैट इज कॉल्ड एज हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म. इसको क्या बोलेंगे, हाइपोगोनेडोट्रोपिक. ट्रॉपिक मीन्स क्या होता है कि काइंड ऑफ जो बोलते हैं ना स्टिमुलेशन हम बोल सकते हो, नरिशमेंट, तो जो भी गोनैड्स हैं उनको जो हार्मोन चाहिए वो नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म. इफ हायर देन लुक द कैरोटाइप, आपको कैरोटाइप देखना है, अगर ज़्यादा है तो X0 यू कैन से टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं हम इसको, 46XY 46 क्रोमोसोम है बट जो सेक्स क्रोमोसोम है वो XY है, तो दैट इज कॉल्ड एज द गोनेडल डिसजेनेसिस. ओके, इट इनहिबिट्स द फॉर्मेशन ऑफ गोनैड्स, ओवरी वगैरह वो इनहिबिट्स करेगा फॉर्म करने में. वाई, बिकॉज देयर इज अ Y क्रोमोसोम. एंड मुलेरियन डिसजेनेसिस, यू ऑल नो वेरी वेल, these are the congenital problems happening due to the kind of presence of Y chromosome. Okay, तो गोनाडोल डिसजेनेसिस, रेजिस्टेंट ओवरी सिंड्रोम, दैट इज कॉल्ड एज अ टेस्टिकुलर फेमिनाइजिंग सिंड्रोम. in presence of Y chromosome there will not be a kind of whole female genital tract. Okay, there will not be a whole female genital tract. तो 46XX that nothing but absent vagina या फिर यूट्रस, दैट इज कॉल्ड एज अ MRKH सिंड्रोम. MRKH सिंड्रोम. तो ये थोड़ा सा आपको इसमें देखना है, अगर FSH LH अगर ज़्यादा है तो टर्नर सिंड्रोम पॉसिबिलिटी हो सकती है, टेस्टिकुलर फेमिनाइजिंग सिंड्रोम हो सकता है, या फिर MRKH सिंड्रोम. ओके, इसका एक फुल फॉर्म है, उसको मैं डिटेल में भी फर्दर डिस्कस करता हूँ. MRKH सिंड्रोम, एंड्रोक्राइनल फैक्टर. ओके, एंड गोनेडल डिसजेनेसिस, अगेन देयर इज अ प्रोबेबल कॉज ऑफ दैट. इफ इट इज शॉर्ट या एबनॉर्मल, अगर हाइट अगर शॉर्ट है या एबनॉर्मल है, सी अगेन द FSH एंड LH एंड सी द कैरोटाइप अगेन. ओके, नाउ इसकी जो कॉसेज है प्राइमरी एमेनोरिया के उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे. नाउ लेट्स सी द सेकेंडरी एमेनोरिया. पेशेंट की जो फीमेल्स है उसको मेंसेस पहले आ रहा था, लेकिन लास्ट 3 साइकिल से या फिर लास्ट 6 मंथ से कोई साइकिल नहीं आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी एमेनोरिया. सो यू शुड नो द टर्म्स. प्राइमरी एमेनोरिया कब बोलेंगे, 14 एज है, फीमेल को कोई सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं है, कोई मेंसेस नहीं आ रहा है, प्राइमरी एमेनोरिया. या फिर फीमेल की एज 16 है विथ प्रेजेंस ऑफ secondary sexual characters, that is called as a primary amenorrhea. Secondary amenorrhea, how we will define, so absence of menses for 3 cycles or for 6 months in women, that is called as a who previously menstruated regularly but now it is not happening, that is called as a secondary amenorrhea. Absence of menses for 3 cycle or 6 months in women, that is called as a secondary amenorrhea. Okay, so you can see here the causes of this सेकेंडरी एमेनोरिया. नाउ पहले ये फीमेल्स को मेंसेस आ रहा था,
ओके, बट नाउ शी कंप्लेनिंग कि ऐसा नहीं, एक मंथ 2 मंथ ऐसा नहीं, 3 महीने कंटिन्यूस उसको मेंसेस नहीं आ रहा है. वेन एवर फीमेल कमिंग इन आवर ओपीडी, वी आर सजेस्टिंग, वी आर काउंसलिंग द लेडी कि you suppose wait for 1 cycle, 2 cycle, 3 cycle. When there is no bleeding up to 3 cycle, up to 6 months, definitely we have to focus that. Okay, we have to rule out the cause of that. Okay, तो you can see here secondary amenorrhea physiological हो सकता है. प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में डेफिनेटली एमिनोरिया रहता ही रहता है. दैट इज कॉल्ड एज अ फिजियोलॉजिकल एमिनोरिया, दैट इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी एमिनोरिया. न्यूट्रिशनल हो सकता है. ओके, एनोरेक्सिया है, एक्सट्रीम ओबेसिटी है, तो इनिबिट्स करता है फॉर्मेशन वगैरह हार्मोन्स का, एंड दैट्स वाई नहीं होता है. दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशनल कॉज ऑफ एमिनोरिया. जेनिटल ट्रैक्ट, दिस इज मेनली we are seeing in the females for the causes of our secondary amenorrhea. The genital tract issue like obstetric injuries, chemical burns, cervical atresia है, okay, या फिर genital tuberculosis है, genital tuberculosis है, PID वगैरह है, okay, pelvic inflammatory diseases है, Asherman syndrome. Asherman syndrome is a kind of fibrous sheet है uterus के अंदर, तो definitely there is no production of hormones, there is no growth of uterus and there is no menses. okay, तो genital tracts की problems है, उसको हमें रूल आउट करना है. उसको रूल आउट कैसे करेंगे? वी हैव अ लैप्रोस्कोपिक व्यू, वी हैव अ एंडोस्कोपिक व्यू, वी हैव अ DNC, वी हैव अ काइंड ऑफ देयर नंबर ऑफ वे वी कैन रूल आउट द प्रोबेबल कॉज ऑफ दैट. ओके, तो ओवेरियन अगर प्रॉब्लम है, दैट इज रेडियोथेरेपी, प्री मैच्योर मेनोपॉज हो गया है, या फिर रेजिस्टेंट ओवरी, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, PCOD है फीमेल्स को, PCOD में भी मेंसेस नहीं आता है, मस्कुलानिंग ओवेरियन ट्यूमर्स, दिस आर द कॉजेस ऑफ आवर सेकेंडरी एमिनोरिया. पिट्यूटरी प्रॉब्लम हो सकता है, पिट्यूटरी ट्यूमर हो गया है, ट्यूमर अगर हो गया है तो डेफिनेटली काइंड ऑफ यू कैन सी हियर सेकेंडरी एमिनोरिया नहीं होगा. ओके, हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया है, हाइपर प्रोलैक्टिन हार्मोन ज़्यादा है, तो डेफिनेटली देर इज विल नॉट हाइपर प्रोलैक्टिन हार्मोन, या फिर ज़्यादा जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वो क्या करता है, इनिबिट करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ FSH एंड LH. और या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर फीमेल ले रहे, डेफिनेटली इट विल इनिबिट्स आवर हार्मोन प्रोडक्शन नॉर्मली which we are seen previously. okay, drugs like tranquilizers है, metoclopramide है, PPH post menstrual post prandial hemorrhage, या फिर you can see here post prandial नहीं, post pregnancy जो hemorrhages होते हैं, that is called as leads to secondary amenorrhea again. okay, so PPH में कैसे एमिनोरिया नहीं होगा ये आपको देखना है. वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होने से वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, पिट्यूटरी नेक्रोसिस हो जाता है, एंड लैक्टेशनल फेलर हो जाएगा. पिट्यूटरी प्रोलैक्टिन वगैरह बना रहा है, डेफिनेटली वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया है, पिट्यूटरी नेक्रोसिस हो गया है, लैक्टेशनल एमिनोरिया, एंड दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी एमिनोरिया. ओके, लैक्टेशनल फेलर हो गया, यहाँ पे लैक्टेशन भी नहीं है, एंड डेफिनेटली क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रोलैक्टिन फॉर्म नहीं हो रहा है. ओके, एंड दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी एमिनोरिया. देयर इज वन मोर टर्म लैक्टेशनल amenorrhea which we have discussed as we have discussed the physiological cause of our secondary amenorrhea. okay, but what we are here what we able to see here कि post पार्टम जो ह्यूमरस था, पोस्ट पार्टम ह्यूमरस था, ड्यूरिंग डिलीवरी बहुत सारा जो ब्लड लॉस हो गया है, दैट इज लीड्स टू द वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, पिट्यूटरी नेक्रोसिस, लैक्टेशनल फेलर हो गया है. पेशेंट जो है पोस्ट पार्टम हेमरेज में बहुत ज़्यादा अगर ब्लड लॉस हो गया है तो डेफिनेटली प्रोलैक्टिन फॉर्म नहीं होता है, और फीमेल्स को काइंड ऑफ लैक्टेशनल एमिनोरिया नहीं है, यहाँ पे लैक्टेशन भी नहीं हो रहा है, एमिनोरिया भी नहीं हो रहा है. ओके, लैक्टेशनल एमिनोरिया यहाँ पे हम नहीं बोलेंगे, बिकॉज लैक्टेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है ड्यू टू द नेक्रोसिस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स, विच हार्मोन जो सीक्रेट कर रहा था डेफिनेटली वो भी नहीं है. ओके, तो सेकेंडरी दैट इज कॉल्ड सीहान सिंड्रोम. ओके, तो MRKH सिंड्रोम, testicular feminizing syndrome, Asherman syndrome, these are the important the terminologies. Amenorrhea physiological हो सकता है, पैथोलॉजिकल हो सकता है, प्राइमरी सेकेंडरी ये हम डिस्कस कर रहे हैं. पैथोलॉजिकल में यू कैन से कंसील्ड या फिर रेयर. ओके, तो प्राइमरी देख सकते हो बिफोर प्यूबरिटी, सेकेंडरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दैट इज कॉल्ड एज अ काइंड ऑफ ड्यू टू a kind of progesterone hormone. okay, high level of progesterone hormone, it inhibits the FSH and LH. okay, it inhibits the formation of FSH and LH. तो डेफिनेटली FSH and LH नहीं होगा तो क्या होगा, मेंसेस नहीं आएगा. तो दैट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लैक्टेशन, हाइपर लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ आवर FSH and LH. ओके, एंड फॉलोइंग मेनोपॉज, तो प्री मेनोपॉज हो सकता है, फिर मेनोपॉज जब एक 45 to 50 एक एज क्राइटेरिया है, आफ्टर दैट देयर इज अ मेनोपॉज. ओके, एब्सेंस ऑफ menstrual bleeding.
तो ये सेकेंडरी एमेनोरिया में आते हैं. बट beyond that there are also we are able to see nowadays, okay, due to the genital tract issues, due to the a kind of just we have nutritional problems, okay. So primary amenorrhea, you can see here primary amenorrhea, we have the loss of the, let's see the causes of that. So hypogonadotropic hypogonadism, जैसे मैंने आपको बताया कि hypogonadism is a condition in which the sex organs not produces hormones or produces very low, okay. तो this is hypogonadotropic hypogonadism is a form of hypogonadism that is due to the problem with the pituitary glands and hypothalamus और pituitary glands. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपना हाइपोथैलेमस जो है ना, हाइपोथैलेमस जो है वो क्या करता है, हार्मोन बनाता है, ओके, हार्मोन सिक्रेट वगैरह करेगा. बाद में एक्टिवेटिंग फैक्टर डीएक्टिवेटिंग फैक्टर पिट्यूटरी ग्लैंड बनाएगा. तो डेफिनेटली ये दोनों अगर एक्टिव नहीं रहेंगे तो डेफिनेटली देयर इज नो मेंसेस, ओके. हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी डिसफंक्शंस, डिले प्यूबरिटी, कैलामन सिंड्रोम्स, सीएनएस ट्यूमर से तो डेफिनेटली द हाइपोगोनाडिज्म ये उसका एक कॉज हो सकता है. तो यू कैन सी पिट्यूटरी ट्यूमर्स में पिट्यूटरी ग्लैंड में एक ट्यूमर फॉर्म हो जाता है एंड दैट्स व्हाई देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल हार्मोन लेवल, ओके. अदर कॉज देखते हैं हाइपरगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म, कंडीशन वेयर एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ गोनाड सीन्स. तो प्राइमरी ओवेरियन फेलियर्स हो गया है पेशेंट का, रेजिस्टेंट ओवरी सिंड्रोम्स ड्यू टू अ काइंड ऑफ resistance in our ovaries, okay. Then galactosemia है, enzyme deficiency है, that is a cause of our hypergonadotropic hypogonadism, okay. Then abnormal chromosomal patterns again leads to the primary amenorrhea like Turner syndrome है. androgen insensitivity syndromes, androgen insensitivity syndromes क्या है ये देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे डिफाइन करता हूँ. androgen insensitivity syndrome means there is a when a person who is genetically male who has Y chromosome, who has one X and one Y chromosome is resistant to male hormone, okay, that is called as a hyper insensitivity a kind of syndrome, okay. So you should know the AIS, that is called as a androgen insensitivity syndrome, is defined as person who is genetically male who has one X chromosome and one Y chromosome is resistant to male hormone, okay. Normally you all know very well फीमेल्स में भी एंड्रोजन फॉर्म होता है बट एंड्रोजन कन्वर्टेड टू द एस्ट्रोजन. तो उसके लिए जो एक इंजाइम फॉर्म, उसके लिए एक इंजाइम होता है काइंड ऑफ, वो इंजाइम मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करता हूँ. बट वो इंजाइम अगर डिफिशियंसी होती है, एड्रिनल ग्लैंड्स के डिफिशियंसी की वजह से वो इंजाइम डिफिशियंसी होती है एंड दैट्स वाई उसका जो कन्वर्जन होता है, ओके, एंड्रोजन हार्मोन जो फॉर्म हो रहा है फीमेल्स में उसका कन्वर्जन नहीं हो पाता है. दैट्स वाई अ काइंड ऑफ जो मेल के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं फीमेल्स में ज़्यादा देखने को लगते हैं, ओके. एज अ रिजल्ट द पर्सन हैज सम ऑफ फिजिकल ट्रेट्स ऑफ वुमेन्स बट द जेनेटिकल मेकअप ऑफ मैन, ओके. तो यू कैन सी हियर नाइदर यूट्रस और नॉर ओवरीज वुमेन्स XY मोअरीज सिंड्रोम, ओके. द कॉजेज ऑफ प्राइमरी डेवलपमेंट ऑफ डिफेक्ट ऑफ जेनिटल ट्रैक्ट्स, ये भी कॉज हो सकता है. इम्परफोरेटेड हाइमेन है, मुलेरियन डिसजेनेसिस, ट्रांसवाजाइनल सेप्टम्स, एट्रीजिया ऑफ वजाइना, अपर 1/3 ऑफ वजाइना, दैट इज अगेन लीड्स टू द प्राइमरी एमेनोरिया, ओके. कंप्लीट एब्सेंस ऑफ वजाइना, अगेन वजाइना ही नहीं है तो फ्लो कैसे होगा, ओके. देन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ यूट्रस. तो इम्परफोरेटेड हाइमन क्या है ये आपको पता होना चाहिए. एक्सट्रीम वेट गेन और वेट लॉस फीमेल का होने लगता है. अ कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटी सच एज इम्परफोरेटेड हाइमन, हाइमन ही रप्चर नहीं हुआ तो यहाँ पे पिंकिश ब्लूइश कलर का अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा एज वी आर keeping the patient or keeping the females in a lithotomy position, okay. So this is nothing but this is the lithotomy position of females where you will find the kind of urethral opening and vaginal opening. Vaginal opening is guarded by our hymen. तो hymen अगर rupture नहीं है तो definitely there is no menses, okay. तो hymen abnormality leads to the cryptomenorrhea and that is called as a hematocolpus, hematometra and hematosalpinx. तो collection of blood in the fallopian tube that is called as hematosalpinx. Collection of blood in the uterus that is called as a hematocolpus, okay, sorry, hematometra, and a kind of collection of blood in the first distended part of the vagina that is called as a hematocolpus, okay. Colpus means क्या होता है, a kind of vagina. Hematocolpus, hematometra and hematosalpinx, these are the a kind of types of our imperforated hymen, you can say, okay. These are the normal congenital issues which may are responsible for our kind of primary amenorrhea, Mullerian dysgenesis. तो प्रॉपर अगर जेनेटल ट्रैक्ट ही फॉर्म नहीं हुआ तो कोई सवाल ही नहीं आता है कि एब्सेंस ऑफ मेनोरिया होगा या नहीं, ओके. तो कॉजेज ऑफ मेनोरिया कंटिन्यूम देख रहे हैं. डिसफंक्शन ऑफ थायराइड एंड एड्रेनल ट्रैक्ट्स, तो यू कैन सी हियर इट इज़ अ कॉमन इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसीज. जस्ट मैंने आपको बताया
2 मिनट बैक मैंने आपको बताया कि 21 स्टेरॉइड जो है 21 हाइड्रोक्सिलेस, ये जो इंजाइम्स है ये एंड्रोजन जो फीमेल में फॉर्म होता है, एंड्रोजन फीमेल में फॉर्म होगा ही होगा। ओके, वो फॉर्म होने के बाद उसको कन्वर्ट करने के लिए ये इंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर ये इंजाइम नहीं है तो डेफिनेटली एंड्रोजन का जो लेवल है फीमेल्स में वो बढ़ते जाएगा। तो दैट इज नथिंग बट आवर दिस रिजल्ट इन द इनसफिशिएंसी सिंथेसिस ऑफ आवर several important steroidal hormone and increase the production of androgen in the girls. Okay, that is dysfunction of thyroid and adrenal cortex. So as soon as the high level of androgen, again the inhibit the formation of FSH and LH. Okay, and that is leads to the amenorrhea. Okay, so you can see the poor beard growth. Okay, breast development, underdevelopment testes. Okay, the absence of menstrual flow may be caused by the one of the many different conditions such as extreme weight gain or weight loss due to the hypothalamic dysfunction. Okay, the causes of amenorrhea again हम डिस्कस कर रहे हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी हो सकता है, डायबिटीज मेलाइटिस वगैरह। सीरियस इलनेस लाइक टीबी, एनीमिया, अगेन द कॉज ऑफ एनीमिया इज अगेन मोस्ट लीडिंग problems we are seeing in the ladies. Okay, now let's see the causes of secondary amenorrhea. तो यूट्राइन फैक्टर्स, जैसा आई सेड, सेकेंडरी amenorrhea मेनली किसके वजह से होगा? प्राइमरी एमेनोरिया में हार्मोन्स का मेनली इशूज था, अभी सेकेंडरी एमेनोरिया में जेनेटल ट्रैक्ट का इशूज है। तो ट्यूबरकुलर एंड्रोमेट्राइटिस डीएनसी वगैरह पेशेंट का करते हैं। ओके, डीएनसी में क्या होता है? डायलेटेशन एंड क्यूरेटास। तो सैंपल लेते हैं एंडोमेट्रियम का। ओके, यूट्रस की लाइनिंग जो होती है, इनर लाइनिंग, दैट इज एंडोमेट्रियम का एक सैंपल लेते हैं और उसको हिस्टोपैथ के लिए भेजते हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजते हैं। तो कोई डिसीजेज है या फिर कुछ फाइब्रस वगैरह है तो उसको रूल आउट करने के लिए डीएनसी वगैरह करते हैं। तो उसमें हमें रूल आउट हो जाता है कि ट्यूबरकुलर एंड्रोमेट्राइटिस, या फिर सर्जिकल रिमूवल हो गया यूट्रस का, या फिर पोस्ट रेडिएशन, देयर इज अ सेकेंडरी एमेनोरिया. ओके, ओवेरियन फैक्टर में यू कैन सी हियर PCOS, polycystic ovarian syndrome, premature ovarian failure. Okay, then resistant ovary syndrome. These are the causes of our ovarian factors of our secondary amenorrhea. तो polycystic ovarian disease में क्या होता है? There is a lots of androgen. Okay, and lots of androgen leads to the absence of amenorrhea, absence of menses. The sulfingitis you can see here. This is the infection due to the PID, pelvic inflammatory diseases due to the urinary tuberculosis in females. Okay, sulfingitis, inflammation of fallopian tubes. Ovophoritis, inflammation of ovaries. Okay, this is nothing but our PIDs. तो causes of secondary amenorrhea again देखते हैं, pituitary factors में adenoma हो सकता है, Cushing syndrome, weight gain, fat accumulation due to exposure of high cortisol. Okay, that is again inhibits the formation of FSH and LH. Acromegaly है, या फिर Simmons diseases है. Simmons disease means deficiency of function of pituitary glands. So there is a amenorrhea. तो नाउ यू एबल टू सी कि मैंने प्राइमरी में क्या बताया, जेनेटल इश्यूज बताया. जेनेटल इश्यूज नॉर्मली लीड्स टू सेकेंडरी एमेनोरिया, बट देयर आर नॉट ओनली दैट जेनेटल इश्यूज, वी ऑल्सो हैव अ काइंड ऑफ हार्मोनल इश्यूज ऑल्सो. ओके, तो hypopityriaism result in the atrophy of various organs. Okay, एड्रिनल फैक्टर्स में यू कैन सी एड्रिनल ट्यूमर्स है, थायराइड फैक्टर्स में थायराइड ग्लैंड वगैरह देखना है. तो दिस आर द प्रोबेबल कॉज ऑफ आवर सेकेंडरी एमेनोरिया. नाउ लेट्स सी द क्रिप्टोमेनोरिया. व्हाट इज क्रिप्टोमेनोरिया? द क्रिप्टोमेनोरिया मीन्स अकरेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स विदाउट शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम. अकरेंस ऑफ द मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स विदाउट शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम. ओके, दैट इज कॉल्ड द क्रिप्टोमेनोरिया. क्रिप्टो मीन्स हिडन, मेनोरिया मीन्स लॉस. तो ये प्राइमरी एमेनोरिया में आता है, जहाँ पे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर फीमेल्स में आएगा. फीमेल की एज अटेन हो चुकी है, प्यूबरिटी एज अटेन हो चुकी है फीमेल्स की, बट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी है, बट मेंसेस नहीं है. दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी एमेनोरिया. तो मेंसेस नहीं है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, तो ये प्राइमरी एमेनोरिया में आएगा. लेकिन इसमें से कौन सा प्रोबेबल कॉज है वो देखना है. तो क्रिप्टोमेनोरिया मीन्स अ काइंड ऑफ जहाँ पे इम्परफोरेटेड हाइमन है, हाइमन रप्चर नहीं हुआ है, देयर इज अक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इनटू द वजाइना, यूट्रस एंड फॉलोड बाय अ काइंड ऑफ फैलोपियन ट्यूब. दैट इज कॉल्ड द क्रिप्टोमेनोरिया. द ब्लड स्टार्ट टू अक्यूमुलेट द रेट्रोस्पेक्टिवली. ओके, तो कॉजेज देख सकते हो, कंजेनिटल में इम्परफोरेटेड हाइमन, ट्रांसवर्स सेप्टम्स, या फिर एट्रीजिया ऑफ अपर थर्ड ऑफ वजाइना एंड सर्विक्स. दैट इज लीड्स टू द क्रिप्टोमेनोरिया. नाउ फॉलोइंग कॉज यू कैन सी सर्वाइकल स्टेनोसिस है फीमेल्स को. सर्वाइकल स्टेनोसिस अगेन रहेगा, तो फीमेल जो शेडिंग हो रहा है एंडोमेट्रियम का वो वहीं पे कलेक्टेड रहेगा, सर्वाइकल स्टेनोसिस. ओके, सेकेंडरी वजाइनल एट्रीजिया. तो दिस आर द प्रोबेबल कॉज ऑफ आवर. हेमेटोकॉल्पस मीन्स कलेक्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड इन द वजाइना. हेमेटोमेट्रा मीन्स कलेक्शन ऑफ ब्लड इन द यूट्रस ड्यू टू द इम्परफोरेटेड हाइमन. Okay, and hematosulfins means collection of blood in the fallopian tubes. That is called our hematosulfins, hematocolpos, hematometra. Okay, तो क्लिनिकल पिक्चर्स यंग गर्ल्स में नॉर्मली देखने को मिलेगा. नो मेनार्चे, नो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग. ओके, साइक्लिक कोलिकी एब्डोमिनल पेन फीमेल्स को रहेगा.
ओके. फीमेल्स बहुत सारे जीपे के पास विजिट करके आएगी, बट no one will, if suppose no one will doing the per vagina, definitely per vagina examination, definitely they will give a kind of antibiotic, they will give a kind of analgesic, antipyretic medicines. Okay, but there is no ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज, ओके, ऑफ दैट. तो उसका कॉज ट्रीट करने के लिए डेफिनेटली यू शुड डू अ काइंड ऑफ पर वजाइनल एग्जामिनेशन. सो एज सुन एज यू विल डू द पर वजाइनल एग्जामिनेशन, देर इज नॉर्मली सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर विल नोटिस सुप्राप्यूबिक बल्ज देखने को मिलेगा एंड ब्लूइश बल्जिंग मेम्ब्रेन इन द हाइमेन्स यू एबल टू सी. तो उसके वजह से क्या होगा, फीमेल्स को साइक्लिक कोलिकी एब्डोमिनल पेन होगा. ओके, साइक्लिक क्यों? क्योंकि जैसे ही शेडिंग हो रहा है ब्लड का तो ब्लड इकट्ठा होते जा रहा है. तो साइक्लिक एंड कोलिकी एब्डोमिनल पेन फीमेल्स को बढ़ता रहेगा. प्रेशर सिम्टम रहेगा पेशेंट को. ओके, एंड यूएसजी कंफर्म द साइट ऑफ कलेक्शन. तो दैट इज ऑल अबाउट फॉर अवर एमिनोरिया एंड द काइंड ऑफ क्रिप्टोमेनोरिया. इसका ट्रीटमेंट अगर देखेंगे तो क्रूसिएट, ओके, क्रूसिएट, इंसीजन एंड डू ड्रेनेज. तो जो हाइमेन की मेम्ब्रेन होती है उसको हमें क्या करना है, इंसीजन लेना पड़ता है. एंड देर इज अ way we are creating so that the menstrual blood can come out of the genital tract. ओके, तो पर रेक्टली आपको डिस्टेंडेड वजाइना फेल्ट होगा. यू विल नोटिस द डिस्टेंडेड वजाइना. ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट फॉर अवर द एमिनोरिया, टाइप्स ऑफ एमिनोरिया एंड डिटेल ऑफ अवर काइंड ऑफ क्रिप्टोमेनोरिया. ओके.